A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last few videos, we already discussed last topic, second last topic of this chapter, that is the name is change in profit sharing ratio among existing partners. It is the first example of the reconstitution of the partnership firm, and you can see that at the time of the change in profit sharing ratio, firstly we find out the gaining and sacrificing ratio. Thereafter, we are already discussed the accounting treatment of goodwill, accounting treatment of general reserve, accumulated profit and accumulated losses, as well as the accounting treatment of specific reserve like investment fluctuation reserve and investment fluctuation reserve and workman compensation reserve, as well as we see that how we will treat the revaluation of assets and reassessment of liabilities. So in this video, firstly we discussed discussed and revised, which already we discussed in the last video, that is an accounting treatment of revaluation of assets and reassessment of liability, because it is a very important part of this video. So that's why firstly हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया उसको पहले रिवाइज करेंगे कि at the time of change in profit sharing ratio among existing partner, how we will record the increase in assets, increase in liability, decrease in assets, decrease in liability in the books of account. And there are basically two situations are there. First, when firm wants to record such changes in the books of account, and number second, when firm does not want to record the revised value of the assets and liability in the books of account. So without getting delay, let's discuss about it, because you know very well नए टॉपिक को स्टडी करने से पहले हमें पहले प्रीवियस टॉपिक को रिवाइज करना जरूरी है आज के वीडियो में, इसलिए हम पहले इसको रिवाइज करेंगे. And thereafter we will move to the next situations. The situation number 2, that is when revised value are not to be recorded in the books of account. So let's see discuss the very important topic, the second the second last topic of this chapter, that is an accounting treatment of revaluation of assets and reassessment of liabilities at the time of changing profit sharing ratio among existing partner. So let's start today's video. Revaluation of assets and reassessment of liabilities. So what is the basic concept of this topic? That is at the time of change in profit sharing ratio among existing partner, at the time of change in PSR among existing partner, every firm must revaluate its assets and reassess its liabilities. यानी कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, उस सिचुएशन में हर तरह की फर्म अपनी एसेट्स को रिवैल्यूएट करती है और लायबिलिटीज को रीअसेस करती है. और अगर कोई प्रॉफिट या लॉस होता है एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, उसे एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर ही डिस्पोज कर दिया जाता है. एंड it may be given effect to in
में से दो तरीके से हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में अफेक्ट करते हैं यानी रिकॉर्ड करते हैं। इसको ट्रीट करने का दो तरीका होता है। द फर्स्ट इज व्हेन revised value are to be recorded in the books। बेसिकली पहला कॉन्सेप्ट होता है कि जब एसेट्स की वैल्यू में या लायबिलिटीज की वैल्यू में कोई भी चेंजेस होगा तो उस रिवाइज्ड वैल्यू को हम रिकॉर्ड करेंगे। और दूसरा आपको समझ में आ गया होगा when revised value are not to be recorded in the books। मतलब पहला है कि जो न्यू वैल्यू है उसको हम रिकॉर्ड करें और दूसरा है जब न्यू वैल्यू को रिकॉर्ड ना करें। तो जब रिवाइज्ड वैल्यू को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो सिचुएशन में हम जर्नल एंट्री भी पास करते हैं। उस सिचुएशन में क्या होता है, जर्नल एंट्री भी पास होती है और रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनता है। कौन सा अकाउंट बनता है सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है। इसमें मैंने दोनों चीज बता दिया। एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर एवरी फर्म मस्ट रीवैल्यूएट इट्स एसेट्स एंड रीअसेस इट्स लायबिलिटी एंड व्हेन partnership firm want to record the revised value in the books of accounts, so in this situation the following journal entry will be passed and revaluation account will be prepared as follows। तो जर्नल एंट्री कौन कौन सी पास होती है उसको हम देख सकते हैं। तो अगर हम एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यूएट कर रहे हैं, रीअसेस कर रहे हैं तो कितनी कंडीशन हो सकती है। पहला हो सकता है कि जब हमारी एसेट्स की वैल्यू क्या हो, घटे, और दूसरा हो सकता है जब एसेट्स की वैल्यू बढ़े। मैं साइन से इसलिए समझा रहा हूँ, साइन मतलब अप या डाउन के साइन से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आए। जब एसेट्स की वैल्यू डिक्लाइन होगी तो क्या जर्नल एंट्री होगी, जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या होगी। क्योंकि रीवैल्यूएट का मतलब क्या है कि हम फिर से एसेट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं या मेजर कर रहे हैं। जब एसेट्स की वैल्यू डिक्लाइन होती है तो इनकी होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, और जब एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, घट बढ़ती है तो इनकी होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। सिमिलरली थर्ड सिचुएशन क्या होगा सर, थर्ड होगा कि लायबिलिटी की वैल्यू बढ़े और लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो, घटे। तो दोनों ही समझ लो, अगर लायबिलिटी वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब लॉस है। अब आपको कुछ समझ में आ गया, एसेट्स की वैल्यू घट रही है लॉस, एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो प्रॉफिट। तो जब लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन डेबिट, प्रॉफिट हो जाएगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट। उसी तरह से जब लायबिलिटी वैल्यू बढ़ेगी तो लॉस है तो एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, और जब लायबिलिटीज की वैल्यू घटेगी तो क्या होगा सर, होगा लायबिलिटीज, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। और एट लास्ट क्या होगा सर, एट लास्ट क्या होगा, या तो हमें प्रॉफिट होगा या तो हमें लॉस होगा। और अगर कोई प्रॉफिट होता है यानी एट लास्ट जब आप कई तरह की एसेट्स एंड कई तरह की लायबिलिटीज को रीवैल्यूएट रीअसेस करोगे तो एट लास्ट या तो आपको फायदा होगा या तो आपको नुकसान होगा। और अगर प्रॉफिट होता है किस पे, ऑन रीवैल्यूएशन, तो क्या एंट्री होगी, और अगर लॉस ऑन रीवैल्यूएशन होता है तो क्या एंट्री। ठीक, अगर प्रॉफिट होता है रीवैल्यूएशन में तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। तो एंट्री क्या होगी उसकी, प्रॉफिट होगा रीवैल्यूएशन पे तो उसकी एंट्री होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो, याद रखिए होगा मतलब ओल्ड रेशियो। और लॉस होगा तो क्या होगा, जस्ट अपोजिट, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रीवैल्यूएशन। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। यानी कि इफ देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस ऑन द रीवैल्यूएशन and partners want to record the revised value in the books of account, in this situation
the loss or profit will be distributed by old partner in their old age. Okay, let's see that how we will prepare the revaluation account when revised value are to be recorded in the books. तो अगर आप जर्नल एंट्री को देखेंगे, जर्नल एंट्री को कंसीडर करेंगे, तो जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो फॉर्मेट वही रहेगा। सबसे पहले टॉप में लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर बनाएंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, एंड इट विल बी डेबिट साइड एंड इट विल बी क्रेडिट साइड। एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट इज जस्ट लाइक अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, डेबिट में लॉसेस एंड क्रेडिट में प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर देते हैं, जस्ट लाइक अ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अगर हम आपसे ये कहें कि अगर एसेट्स की वैल्यू घट रही है तो लॉस है, तो किधर लिखेंगे डेबिट में, टू डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन व्हाट्स, वैल्यू ऑफ द एसेट्स, और इधर जस्ट अपोजिट, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। सिमिलरली लायबिलिटी के केस में अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इट इज अ लॉस, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, और इधर डिक्रीज इन लायबिलिटीज। इसके अलावा कुछ और एडजस्टमेंट भी आते हैं, जैसे अगर अनरिकॉर्डेड की बात करें, अनरिकॉर्डेड टर्म है, सपोज देयर इज अ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्या होती है, लॉस होगी। कोई ऐसी लायबिलिटी जो आपने रिकॉर्ड नहीं की लेकिन पता चला वो लायबिलिटी है तो लॉस हो गया। उसी तरह से अगर कोई अनरिकॉर्डेड प्रॉफिट है, सॉरी एसेट्स है, तो उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये कुछ ऐसी बेसिक कॉमन सी चीज है जिसे आपको पूछने की जरूरत नहीं है, और एट लास्ट हम उसको उसी तरह से इक्वल करते हैं जिस तरह से हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को इक्वल करते थे। कैसे करते थे, उस सिचुएशन में बेसिकली हम लोग क्रेडिट साइड टोटल करते थे और डेबिट साइड टोटल करते थे। अगर डेबिट साइड में कम पड़ता था तो क्या करते थे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मान लो ए और बी है तो उनके बीच में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। और अगर कोई लॉस है तो आप यहाँ टू पार्टनर्स कैपिटल की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, और यहाँ पे ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल। और अगर लॉस है तो इधर क्या लिखेंगे, बाय लॉस ऑन, क्योंकि देखो जब डेबिट साइड ज्यादा होगा क्रेडिट कम होगा तो लॉस होगा, और जब क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है तो प्रॉफिट होगा। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को भी हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में ट्रांसफर कर देंगे। किस रेशियो में, उनके ओल्ड रेशियो में। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि या तो प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन पे या तो लॉस होगा। So it is an all about the accounting for revaluation of assets and reassessment of liability, and it is the first case when revised value are to be recorded in the books. So firstly, please note down all these information in your copy properly. Let's move to the second case related to the accounting treatment of revaluation of assets and the reassessment of liability at the time of change in PSR. The case is when revised value are not to be recorded in the books. It is a very important and specific situation at the time of change in PSR when any partnership firms do not want to record the revised value in the books of account. In this situation, we follow the following steps. यानी कि जब पार्टनरशिप फर्म, ध्यान से समझिएगा, जब पार्टनरशिप फर्म ये नहीं चाहती कि वो रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करे, तो सिचुएशन में वो कई स्टेप्स फॉलो करती है। द स्टेप 1 इज, फर्स्टली ही प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन revaluation of assets and liability। यानी इस सिचुएशन में सबसे पहला स्टेप होता है कि पार्टनरशिप फर्म क्या बनाती है, पार्टनरशिप बनाती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। यानी सिचुएशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन नहीं होता है, ना ही कोई जर्नल एंट्री पास होती है, जैसे आपने केस नंबर 1 में देखा।
तो सिचुएशन में सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी। ये कैसे बनता है, बेसिकली यहां पर हम लोग जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है, जैसे अगर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स है तो उसे हम प्लस करते हैं, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। सिमिलरली अगर इंक्रीज होता है इन दी वैल्यू ऑफ लायबिलिटी तो उसे हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और अगर डिक्रीज होता है इन दी वैल्यू ऑफ लायबिलिटी तो उसे हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और इफ देयर इज एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो ये प्रॉफिट है तो उसको प्लस करेंगे। और अगर किसी तरह का अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये ऐड और लेस करके एट लास्ट वी फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। यानी अगर ये आंसर ऐड और लेस करने में प्लस आता है तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, और अगर माइनस में आता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। यानी बेसिकली जब पार्टनरशिप फर्म ये नहीं चाहती कि, ध्यान समझिएगा, जब पार्टनरशिप फर्म ये नहीं चाहती कि वो रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करे तो सिचुएशन में वो ना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएगी, ना इंक्रीज और डिक्रीज एसेट्स एंड लायबिलिटी में जो इंक्रीज डिक्रीज हो रही है उस चेंजेस के लिए जर्नल एंट्री पास करेगी। वो सीधे सीधे एक स्टेटमेंट बनाएगी जस्ट लाइक दिस, और एट लास्ट वो प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन फाइंड आउट करेगी। और स्टेप 2 जो होता है वो जस्ट लाइक अ गुडविल होता है। स्टेप सेकंड क्या होता है, जस्ट लाइक अ गुडविल। गुडविल में हम लोग क्या करते थे, बताइए आप लोगों को, कि हम लोग गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी कैलकुलेटेड। जो ओल्ड और न्यू रेशियो गिवन है उसके बेसिस पे हम लोग गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करते हैं। और स्टेप 3 हमारा होता है, स्टेप 3 दैट इज इन जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री जस्ट लाइक गुडविल। गुडविल में बार-बार इसलिए बोल रहा हूं कि गुडविल की एंट्री पूरी तरह से श्योर है कि ये एंट्री होती है। क्या एंट्री होती है जर्नल एंट्री, यस, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू sacrificing partners capital account. So at last we find out this entry. So please note down this case in your copy properly. और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा case 1 when revised value are to be recorded in the books and case 2 when revised value are not to be recorded in the books. तो अच्छे से दोनों को नोट डाउन कर लीजिए. Let's we discuss the question related to this topic. Let's we take the one more question related to this topic. The question is question number 40 around. Question number 40 के around इस topic से related questions given हैं. And the question number, yes, question number 36. So please see it very carefully. The question number 36 says that A, B, C are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet are as under: creditor is 2 lakh, general income is 1,20,000, capital 3 lakh 150 and 1 lakh, premises 3 lakh, machinery 180, stock 120, debtors 250 and the banks is 20,000. And on 1st April 2017 partners agreed to share future profit in the ratio of 4:3:2. यानी इनका जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया. तो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं. There are 3 partners
क्वेश्चन नंबर 36, ए बी सी तीन पार्टनर थे जिनका पहले रेशियो था 3:2:1। अब उनका रेशियो चेंज हो गया, वो हो गया 4:3:3। ये ओल्ड रेशियो है और ये इनका न्यू रेशियो। उसके बाद कह रहा है कुछ चेंजेस हुए, उनके लिए एसेट्स को रिवैल्यूएट किया गया, लायबिलिटीज को रीअसेस किया गया। तो ही फाइंड आउट premises will be appreciated by 10%, stock by 10,000. A provision for doubtful debt is to be made on debtor at the rate of 4%. Creditors be reduced by 15,000. Machinery will depreciated by 5,000 and goodwill of the firm is valued at 48,000. So you have to prepare revaluation account. क्वेश्चन में क्लियरली कह दिया, you have to prepare the revaluation account. आपको revaluation account बनाना है एंड कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। तो सो सिंपल, हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ करते हैं इस क्वेश्चन में। पहले रिवैल्यूएशन से रिलेटेड करते हैं, यानी पहले हम लोग जनरल एंट्री पास करते हैं फ्रॉम ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट। पहला एडजस्टमेंट दिया है प्रीमाइसेस विल बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। तो प्रीमाइसेस इंक्रीज हुआ, आप खुद बताइए क्या होगा, फायदा होगा कि नुकसान होगा। पहले प्रीमाइसेस कम था, अब एप्रिशिएट हो गया, तो इट इज इन प्रॉफिट। प्रॉफिट के केस में हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स को डेबिट करते हैं और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हैं। 10% of the premises is 3 lakh का 10%, it will be 30,000. Now second will be a stock by 10,000. stock भी appreciate हुआ है by 10, तो उसकी एंट्री क्या होगी, stock account debit to revaluation। ये assets है दोनों, 10,000 amount is given। Number third, sundry creditor भी reduced by 15,000। liability होती है ना creditors, creditors reduce हो गया, तो profit हुआ कि loss हुआ, so it is in profit। तो एंट्री क्या होगी, सेम, creditors account debit। यानी प्रॉफिट के केस में हमेशा याद रखना है आपको कि you have to revaluation account will be credited and in case of the loss revaluation account क्या होना चाहिए, debit। तो क्रेडिटर्स का कितना होगा आपका 15,000। नंबर 4, मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 15%। अपने लॉस हो गया, डेप्रिशिएट मतलब लॉस, तो एंट्री क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कितना परसेंट बोला है, 10%, 5% एंड द वैल्यू ऑफ द मशीनरी इज 180 का 5% कितना आएगा, 9,000। तो आपने जनरल एंट्री पास कर दी। और गुडविल जो वैल्यूड हुआ है उसके बारे में आपको पता ही है, क्या करते हैं हम लोग, यस सर, क्या करते हैं, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं, तो उसको हम लोग बाद में पहले डिस्कस करेंगे। अब हम लोग नंबर 5 क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए दो ऑप्शन है, या तो आप इस एंट्री की हेल्प से भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो एंट्री की हेल्प से कैसे निकालेंगे, रफ में समझना इस चीज को। ये रफ है मेरा पेज, ठीक है। अब आप एक जगह लॉस कितना है, एक जगह प्रॉफिट। लॉस कितना हुआ 30,000 रुपीज का, सॉरी प्रॉफिट कितना हुआ 30,000 रुपीज का, 10,000 का प्रॉफिट हुआ, 15,000 का प्रॉफिट हुआ, 9,000 का लॉस हुआ। सो अगर नेट निकालो तो प्रॉफिट आपको हुआ 55,000 रुपीज का, जबकि लॉस हुआ 10,000 रुपीज का। तो एट लास्ट अगर हम देखें तो आपको प्रॉफिट हो, और प्रॉफिट के केस में एंट्री क्या होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कौन कौन से हैं, ए, बी और सी। ये मैंने समझाया था आपको कि जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं यानी पार्टनर्स वांट टू रिकॉर्ड रिवाइज्ड वैल्यू इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, सो द प्रॉफिट ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ assets and liability will be divided between the among the old partner in their old ratio। किस रेशियो में, 36:26:16। और लॉस के प्रॉफिट कितना आ रहा है 55 माइनस 9, तो कितना बचा, यस 46,000। अब 46,000 को हम 36:26:16 में डिवाइड कर देंगे, इट इज एन 36,000 30 10 40 and it will be 15,000, yes। ओके, इसमें एक चीज मिस्टेक हुई है, वो है प्रोविजन की एंट्री। जो आपने एंट्री नंबर 6 होगा, एंट्री नंबर 5 will be missing
दैट इज एन प्रोविजन टू बी डाउटफुल डेट्स टू बी मेड ऑन डेटर, ये भी लॉस है आपका, प्रोविजन क्रिएट करना है। तो क्या एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कितना प्रोविजन आपको क्रिएट करना है, प्रोविजन आपको क्रिएट करना है 4% एंड द डेटर विल बी 2,50,000, 2,50,000 का 4% निकालोगे तो कितना आएगा 10,000, तो ये लॉस है। तो ये लॉस यहाँ बढ़ गया, लॉस है 19,000 जबकि प्रॉफिट है 55,000, तो बचेगा 36,000। तो आपको एट लास्ट प्रॉफिट कितना हुआ 36,000 को आप क्या करोगे 362616 में डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 18,000, 12,000, 6,000। ये वर्किंग नोट की तरह यूज होगा। तो या तो आप जर्नल एंट्री पास करके प्रॉफिट एंड लॉस निकाल दो ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, या फिर अकाउंट बना के भी कर सकते हैं, या दोनों एग्जाम में पूछता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा इस क्वेश्चन में आपको मैंने कल फॉर्मेट बताया था, आज भी रिवाइज कराया है कैसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहले हम लोग नोट डाउन करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं लॉस को डेबिट, प्रॉफिट को क्रेडिट। तो प्रॉफिट क्या क्या हुआ आपका, प्रीमाइसेस 30,000 रुपीज का, स्टॉक पे फायदा हुआ 10,000 रुपीज का, और क्रेडिटर्स पे फायदा हुआ आपको 15,000 रुपीज का। लॉस कहाँ कहाँ हुआ है, मशीनरी पे कितना लॉस हुआ है आपको 9,000 का डेप्रिसिएशन लगाना था, और प्रोविजन क्रिएट करना था डाउटफुल डेब्ट्स का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 10,000। सो टोटल ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट इज 55,000, डेबिट में आ रहा है 19,000, तो 55,000 में 19,000 का डिफरेंस आया 36,000, उसको आपने क्या कर दिया प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन करके ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, कितना 18,000, 12,000 and 6,000. So you can see that how we will find out how we will pass the journal entry, and how we will pass the journal entries, and how we will prepare the revaluation account at the time of change in PSR when there is a increase or decrease in the value of the assets and liability. तो ये है आपका assets and liability का revaluation। तो टोटल एंट्रीज कितनी पास हुई रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, टोटल एंट्री पास हुई 6, 1 2 3 4 5 and 6, और एक अकाउंट बना। इसके साथ साथ एक एडजस्टमेंट दिया गुडविल ऑफ द फर्म, उसके लिए भी एंट्री पास होगी, एंट्री नंबर 7। उस एंट्री के लिए हम एंट्री उस एडजस्टमेंट को इंक्लूड करने के लिए यू नो वेरी वेल गुडविल ऑफ द फर्म इज 48,000, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ। गुडविल ऑफ द फर्म इज 48,000। अब इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट में क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो और गेन रेशियो। कैसे निकलेगा, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कितने पार्ट बने हैं, 3। ए का ओल्ड कितना है 362616, उसमें से माइनस करेंगे न्यू 410 310 और 310। तो 6 9 10 का एलसीएम कितना होगा 30, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15 माइनस 12, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 30, 10 माइनस 9, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 35 माइनस 6, सॉरी 9। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू कैन सी दैट ए क्या कर रहा है, ए 330 क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। बी क्या कर रहा है, 130 सैक्रिफाइस कर रहा है। वेयर सी क्या कर रहा है, 430 गेन कर रहा है। और आपको बताया गया है कि गुडविल से रिलेटेड हम क्या एंट्री पास करते हैं, गुडविल से रिलेटेड हम लोग एंट्री पास करते हैं, दैट इज एन यस, हम लोग क्या करते हैं, जो सैक्रिफाइस करता है उसको क्रेडिट और जो गेन करता है उसको डेबिट। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये एंट्री नंबर कौन सा है 7, दिस इज एंट्री नंबर 7। सीज कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ठीक। गुडविल को देख के एंट्री पास करें, गुडविल इज 48,000,
48,000 का 330, यहाँ ध्यान रखिएगा 48,000 का 330 हम निकालेंगे यानी 1/10, तो कितना आ जाएगा 4,800। उसी तरह से बी का निकलेगा 1000 का 130, तो कितना आ जाएगा आपका, यस 1600। और उसी तरह से सी का निकालेंगे 48,000 का 430, 6,400। सो ये जो एंट्री थी, एंट्री नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये एंट्री रिलेटेड थी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर। पीएसआर चेंज हुआ है, इसकी एंट्री और ये एंट्री कब हुई है, एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर। गुडविल की एंट्री हमने पास की, क्वेश्चन इज ऑलरेडी गिवन कि गुडविल इज वैल्यूड इतना है, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस। अभी इस क्वेश्चन में क्या बचा है कि यू हैव टू प्रिपेयर अ पार्टनर्स कैपिटल विद द हेल्प ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। ओके, सो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको पहले नोट डाउन करें। So in today's video you can see that and we discuss about the two important cases related to the accounting treatment of revaluation of assets and reassessment of liabilities. And you can see that there are basically two situations. The first will be when revised value are to be recorded in the books of account and when revised value are not to be recorded in the books of account. And दोनों का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि जब पार्टनरशिप फर्म रिकॉर्ड करती है तो क्या कैसे करती है, कैसे जर्नल एंट्री पास करती है, कैसे रिवैल्यूएशन फॉर्म बनाती है। और उसी तरह से सिमिलरली यू कैन सी दैट जब पार्टनरशिप फर्म उन सारे रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना चाहती तो वो कौन से स्टेप्स फॉलो करती है। एंड ऑल्सो वी सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू द सिचुएशन 1 व्हेन रिवाइज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड आई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन number 35 to question number 40 because without this we cannot raise any problem. So if you have any doubts so online classes में पूछिएगा आप लोग जरूर से। Okay, so bye bye, take care.